Good morning, students. So, before starting today's topic, let's recall the things which we have learned yesterday. Okay, yesterday we had discussed about land resource na, and then about soil also we have discussed and soil formation also. So, better today we will discuss the soil degradation and the soil conservation. Yesterday we have discussed that the soil is an important resource na, and it is a grainy layer on the earth, means very thin layer. And now we will learn that how this soil degrade. Okay, so some points we have discussed in land degradation also, and the same point are here in this soil degradation. So see beta, degradation of soil and conservation measures. So today it is our topic that how this land degrade day by day. So what are the causes, what are the reasons? So first let's see, factors responsible for degradation of soils are: first, deforestation. Deforestation we had done in the land degradation also, the same way in this also. That means when we cut trees in a huge amount, then what happened, the soil that become loose and that can easily wash away with the water and air. So the first cause, the first factor, those means that responsible for soil degradation, that is deforestation, means cutting of trees, cutting of vegetation. Okay, the next, overgrazing. Overgrazing also we have learnt in land degradation also ना. देन कि जो कैटल्स होते हैं वो सिविलाइज तो होते नहीं है कि वो बहुत अच्छे से ग्रास को काटते हैं, वो बहुत ऐसे ही रूड मैनर्स में ग्रास खाते हैं ना। मीन्स जब वो ग्रास को खींचते हैं तो जो सोयल का जो अपर पार्ट है वो भी ग्रास के साथ निकल जाता है, जिससे क्या है कि जो सोयल है वो डिग्रेड हो जाती है. ओके, सो दिस इज द अनदर रीजन, अनदर कॉज. एंड नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और pesticides. Means when over soil we use chemicals, fertilizers, pesticides in a huge amount, then what happened, after some times the soil loses his fertility. Okay, and that become barren. So this overuses of chemical and fertilizers, that also one factor that responsible for soil degradation. So we have to use these chemicals, these pesticides in a limited manner. Okay, now the next cause, and that is rain wash. Rain wash means जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो हैवी रेन क्या करती है, जब बहुत जो पानी स्पीड से जाता है अर्थ के ऊपर से, जो सोयल का सरफेस है उसके ऊपर से, जो देखा है कभी कभी जब बारिश आती है तो पानी में क्या दिखती है, मिट्टी मिट्टी दिखती है ना. इट मीन्स क्या है कि वो मिट्टी क्या है, सोयल का जो अपर पार्ट है वो डिग्रेड हो चुका है, वो मिट्टी जो है वो बारिश के साथ जा रही है ना. सो रेन वॉश. सो अंडरस्टूड दैट हाउ रेन वॉश, कि जब रेन का जो वाटर है, ड्रॉप्स वो गिरती है सॉइल के ऊपर, तो जो सॉइल है ऊपर से जो लूज हो चुकी है वो क्या करती है, बारिश के साथ निकलने लग जाती है, जो उसकी ऊपर की लेयर है. सो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ दिस soil degradation. Now landslides. Landslides also we have discussed in the land conservation topic, land degradation topic. जो लैंडस्लाइड, जब मास मूवमेंट होती है रॉक्स में, डिब्रीज में, जो बहुत सारी मिट्टी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाती है जब अपर साइड से नीचे, तो जो उस पे जो सोयल है वो भी तो डिग्रेड हो जाएगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी. सो दिस इज द cause, another cause. Now next, floods. Floods also same thing like रेन वॉश की. रेन वॉश में बहुत सारा वाटर जब स्पीड से आता है तो ऊपर की जो पार्ट होता है, वो सॉइल का जो पार्ट होता है वो रेन वाटर के साथ निकल जाता है. एंड इन द सेम में जो फ्लड आता है, फ्लड में क्या होता है, बहुत सारा वाटर एक जगह पे इकट्ठा होता है, और जब थोड़े टाइम के बाद जब वो ड्रेनेज होने लग जाता है, पानी वहां से निकलता है, तो वो क्या करता है, जो सॉइल की जो अपर लेयर है उसको भी क्या करता है, अपने साथ ले जाता है. सो दीज आर द कॉजेज. सो अंडरस्टूड बेटा. सो दीज आर द कॉजेज, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर soil degradation: deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer and pesticides, landslides, and last one, floods. Okay, now we know very well that soil is an important resource now, then we have to conserve it, we have to save it. So what should we do for this?
So there are some methods. Those methods we should adopt to avoid this soil degradation. Okay, or you can say soil erosion. So methods of soil conservation. Now we will discuss that what are the methods how we can conserve this soil. So the first method, mulching. अब व्हाट डू यू मीन बाय मल्चिंग? कि जो सोयल होती है उस सोयल के जो अपर पार्ट है उसको ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर्स में आप ये लगा लो कि जो लीव्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे हम स्ट्रॉ भी बोल सकते हैं, जो घास, सूखी सूखी घास होती है ना, उसको हम जब सोयल के ऊपर सोयल को कवर कर देते हैं, मीन्स कौन सी सोयल जो बैरन होती है, मीन्स जो ऊपर, बैरन नहीं कह सकते, कि जो बिल्कुल ऊपर से जो कुछ नहीं होता उसके ऊपर, लाइक कोई वेजिटेशन नहीं होती, जो खाली होती है, वो जो खाली सोयल होती है वो क्या होता है, इजीली वो वाटर के साथ, विंड के साथ वो वॉश हो जाती है। अगर हम उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर से उसको कवर कर दे तो क्या होगा कि सोयल प्रोटेक्ट हो जाएगी ना। सो मल्चिंग, मल्चिंग मीन्स कवरिंग सोयल विद ऑर्गेनिक मैटर टू रिटेन मॉइस्चर। नाउ रिटेन मॉइस्चर हाउ, सी ये हमारी सोयल है, ओके, हमने इसके ऊपर ट्री ग्रो किया है। अब हम क्या करते हैं, जो ये वाली जो सॉइल है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। इट मीन्स जो स्ट्रॉ है, जो हमारा वेस्ट प्लांट्स लीव्स हैं, उन सब से इसको कवर कर देते हैं। ओके, अब क्या होगा कि जब भी विंड या फिर वाटर से, एक तो ये वॉश अवे नहीं होगी, ठीक है, और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जब ये कवर है तो जब हम इस ट्री में जब वाटर देंगे तो वो वाटर एक तो पहले तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में क्या होगा कि ये जो हमने ऑर्गेनिक मैटर से कवर की है लैंड, ये क्या करेगी, मॉइस्चर बनाने में हेल्प करेगी। बिकॉज कि जो सूखी जो सॉइल होती है, मीन जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, वो जल्दी से ड्राई हो जाती है, बट इसको हमने कवर किया हुआ ना, तो डायरेक्ट जो सनरेज आएंगी उससे इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इट मीन्स ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ये मॉइस्चर को रिटेन करने में भी हेल्प करते हैं और सॉइल को डिग्रेड होने से भी सेव करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज क्वांटर बैरियर। अब क्वांटर बैरियर यू कैन से कि इसका एग्जांपल आप इससे कर सकते हो कंपेयर, लाइक हम कहीं जाते हैं और रोड पे जो हाईवेज होते हैं वहां पर तो नहीं, जो मेन जहाँ पर हमें लगा लो सेटलमेंट्स होती है, तो लोग क्या करते हैं कि जो व्हीकल है उनकी स्पीड रोकने के लिए थोड़े थोड़े मीन्स दूरी पे क्या हो जाते हैं, ब्रेकर्स हो जाते हैं। ब्रेकर्स, अब एक तो गाड़ी बिना ब्रेकर के है तो बहुत स्पीड से आती है, अब जब ब्रेकर हो जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है ना। सो इन द सेम वे जो माउंटेन एरियाज होते हैं, माउंटेन एरियाज पे हमने ऐसे स्लोप होता है ना माउंटेन एरियाज पे, अब जब यहाँ से वाटर स्टार्ट होगा, सपोज जब हैवी रेन आती है तो वाटर बहुत स्पीड से आता है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो यहाँ की जो सोयल है उसको अपने साथ ले जाएगा। जब स्पीड है, कोई ब्रेक ही नहीं है, कोई बैरियर काउंटर ही नहीं है, बट अब काउंटर बैरियर में क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे बैरियर बना दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हमने, ये माउंटेन है, हमने यहाँ पे क्रॉप लगाई है, फिर बीच में हमने एक बैरियर बना दिया, काउंटर बैरियर, फिर हमारे यहाँ पे क्रॉप्स है, फिर हमने यहाँ पे बैरियर बना दिया, ओके, यहाँ पे हमारी क्रॉप्स है, देन बैरियर। सो लाइक दिस कि जो माउंटेन है हम उस पे क्या करते हैं, इस टाइप से बैरियर्स बना देते हैं, ठीक है, स्टोन से बना दो, किसी भी चीज से बना दो, मिट्टी से बना दो। अब इससे क्या होगा कि अगर यहाँ से वाटर स्टार्ट हुआ रिवर का, रेन का, तो ये जो सोयल है जो कि डायरेक्ट नीचे आ सकती थी जैसे ऐसे जब बिना किसी बैरियर के, बट अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ की यहाँ पर रुक जाएगी। इट मीन्स वी कैन प्रोटेक्ट सोयल, वी कैन कंजर्व सोयल लाइक इन दिस वे व्हेन वी means adopted this counter barriers, means we make like this barrier on the mountains। okay, next rock dams। now how rock dams, see कि जो रॉक डैम्स होते हैं हम उनसे क्या कर सकते हैं कि सपोज ये रिवर है, अब जब हैवी रेनफॉल होता है तो रिवर का फ्लो बहुत स्पीड से हो जाता है, ठीक है, सो इफ वी मेक हियर डैम, ठीक है, अब यहाँ पे जो डैम बनाया है तो जो ये रिवर है इसका फ्लो तो जो थोड़ा कम हो जाएगा और
ये धीरे धीरे जाएगी आगे, ठीक है। सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रोटेक्ट द सोयल, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि कई बार क्या होता है कि जो फ्लड की सिचुएशन आती है, जब रिवर्स में बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है तो वो बहुत स्पीड से जाती हैं और आसपास की सोयल को अपने साथ ले जाती हैं। बट जब वो धीरे धीरे चलेंगी, स्लो स्पीड से चलेंगी, तो क्या होगा कि सोयल इतनी उनके साथ नहीं जाएगी। सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रोटेक्ट द सोयल बाय मेकिंग दिस डैम्स ऑन रिवर्स। सो अंडरस्टूड बेटा कि रॉक से जब हम डैम्स बना देते हैं, सो दे कैन control the speed of river, and in this way that we can conserve, we can protect the soil. And now next point, that is intercropping. Intercropping means crop को change कर करके grow करना, और you can say कि हम क्या करेंगे कि suppose ये हमारा field है, okay? अब इस field को हम rows में divide कर देते हैं like this, एंड इन फर्स्ट रो की हम ऐसी कोई क्रॉप लगा देते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा है। इस रो में हम वो क्रॉप लगाएंगे जिसकी लेंथ कम है, ओके। फिर अगेन जिसकी लेंथ ज्यादा है, अगेन जिसकी लेंथ कम है, और यहाँ पर भी फिर हम जिसकी लेंथ ज्यादा है। मीन्स इंटरक्रॉपिंग रो अकॉर्डिंग भी हो सकती है कि हम एक फील्ड को डिफरेंट डिफरेंट रो में डिवाइड करते हैं, और रो में भी हम पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट इस टाइप से जो क्रॉप्स है वो लगाते हैं, ओके। लाइक जैसे हमारा शुगर केन है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, और जो दूसरी क्रॉप्स होती हैं उनकी कुछ की लेंथ कम होती है। तो इससे क्या होगा कि जब डायरेक्ट विंड आएगी तो ये जो लॉन्ग है ये शॉर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, मीन्स हमारी पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। सो वी कैन प्रोटेक्ट लाइक दिस, और जिससे कि जो सॉइल है वो भी हमारी साथ में नहीं जाएगी। एक तो इंटरक्रॉपिंग ये होता है कि हम रो के अकॉर्डिंग क्रॉप को इंटरचेंज कर देते हैं, और दूसरा क्या होता है कि हम अपने फील्ड में एनुअली हम क्रॉप को चेंज करके लगाते हैं, कि कभी राइस, कभी वीट, कभी फोडर क्रॉप्स लगा दी बीच बीच में। मीन्स हम जो अपना जो लैंड है उसको हम ऐसे ही खाली नहीं छोड़ते, वहां पे कुछ ना कुछ लगाते हैं। सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रोटेक्ट दी लैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज टेरेस फार्मिंग, ओके। टेरेस समझते हो ना, स्टेयर्स टाइप में जो होता है। सी ये माउंटेन है, अर्लियर ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड इन काउंटर बैरियर कि जब ऊपर से कुछ चीज डायरेक्ट आएगी, वाटर आएगा, रेन वॉश हैवी रेन होगा, तो जो सॉयल है वो इजिली नीचे आ जाएगी। सपोज यहाँ पे जो माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी क्रॉप्स लगाई है, ठीक है, अभी इस पार्ट में उन्होंने अपनी क्रॉप्स लगाई हुई है। अब जो ऊपर से वाटर आएगा तो ये सारी उनकी क्रॉप्स खराब हो जाएगी, क्योंकि जो सॉइल है ऊपर वाली वो धीरे 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 नीचे आ सकती है। अब क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग किस टाइप की होती है कि माउंटेन का यहाँ से थोड़ा सा पार्ट कट कर देते हैं और इसको ऐसे फ्लैट बना देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से फिर इसको फ्लैट बना देते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो इस टाइप के होते हैं ऐसे फ्लैट बन जाते हैं। अब ये जो फ्लैट बने हैं तो यहाँ पे जो सोयल है वो जल्दी से मतलब इजीली नहीं आएगी नीचे। तो इन दिस वे ऑल्सो मीन्स टेरेस टाइप में बना के माउंटेन्स पे यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। सो टेरेस फार्मिंग लाइक दिस कि टेरेस टाइप में बना देते हैं माउंटेन्स पे, मीन जिससे कि वो फ्लैट हो जाती है, और फ्लैट जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे सोयल इरोजन बहुत कम होता है। सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रोटेक्ट द सोयल। एंड नेक्स्ट, कॉन्टर ploughing. Now contour ploughing also, see, contour barrier we have done. In contour barrier means like barrier like breakers, okay, जैसे हम ब्रेकर्स बनाते हैं रोड्स पे। अब कॉन्टर प्लोइंग में क्या होता है कि सपोज ये माउंटेन है, ओके, अब हम इस पे क्या करेंगे, जो हमारा जो मीन्स जो पर्सन है जो ट्रैक्टर वाला है वो ऐसे प्लोविंग करेगा, मीन्स घूम के इस पे, ठीक है, मीन्स इस टाइप से। अब जब ये प्लोविंग ऐसे हुई मीन्स यहाँ पे लाइन बन गई ना ये वाली। अब जो प्लोइंग होती है तो देखते हो ना, कुछ लोगों को तो एक्सपीरियंस भी होगा कि जो फार्म में उसमें लाइंस बन जाती हैं, ठीक है। अब ये जब लाइंस बन गई ऐसे तो ये क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे। लाइक जैसे काउंटर बैरियर में हमने रोक से या फिर स्टोन से या मिट्टी से हम बनाते हैं बैरियर, और इसमें हम किससे करेंगे, जो प्लोविंग होती है उससे अपने आप बनते चले जाएंगे। जो लाइंस बन जाती हैं
तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, वो यहाँ रुक जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, मीन्स बैरियर्स हो जाएंगे ना. सो इन दिस वे ऑल्सो मीन्स कॉन्टर फ्लोविंग वी कैन प्रोटेक्ट द सॉइल. नाउ नेक्स्ट मेथड दैट इज शेल्टर बेल्ट. मीन्स बेल्ट बनाना किसकी, ट्रीज की, कि हम शेल्टर बेल्ट बनाते हैं. अब शेल्टर बेल्ट कैसे बनाते हैं कि सपोज ये हमारा फील्ड है और बीच में हमारी क्रॉप्स हैं, ठीक है, हमने क्रॉप्स लगाई है. अब हम क्या करेंगे कि अगर इसके चारों तरफ यहाँ पे राउंड एरिया में कुछ भी नहीं है तो ये इजिली कि जो विंड आएगी या फिर वाटर से वो वॉश हो सकती है. बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीज के रो में ट्रीज लगा देंगे, ठीक है. और ये क्या करेंगे फिर, एक बैरियर का काम करेंगे. सपोज ये this side, from this side if air will come then this part protect ना. अब जैसे एग्जांपल लगाओ कि मैं फील्ड हूँ, आप एयर हो, ठीक है, और मैंने अपने बीच में ऐसे यहाँ पे सपोज कि ये बुक, ये शेल्टर बेल्ट है मेरी ट्रीज की तरह, ये मेरे सामने है. अब आप मेरे को फूक मारोगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना मुझ तक, मीन्स ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा. सो इन द सेम वे दिस शेल्टर बेल्ट, ये शेल्टर बेल्ट प्रोटेक्ट करती है सोयल को. ओके, सो अंडरस्टूड अप टू हियर. सो बेटा दीज आर द मेथड्स, बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स वी कैन कंजर्व द soil. Okay, so now next topic that is given in our book and that is water resource. Now we know very well that firstly we have learned land, then soil, then what is in line, yes, water. Water is a very important resource now, because we drink, we use the water in many purposes. Like land, we live on land now, but without water we can survive. So land is also a important resource, and earlier also I told you that 30% of the earth surface covered by land and 70% covered by water. So it means third fourth part of earth is covered with water. Okay, means दिखने में तो क्या है कि plenty of water is there on earth, but see, fresh water accounts for 2.7% ओनली. मीन्स ये जो 70% जो हमारी अर्थ सरफेस जो कवर्ड है किससे, वाटर से, उसमें से ओनली 2.7% जो वाटर है दैट इज अवेलेबल, मीन्स दैट वी कैन से दैट इज फ्रेश वाटर. रिमेनिंग वाटर दैट इज इन ओशियन एंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. ओके, बिकॉज वो सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है. उसमें नाउ and in this fresh water की जो fresh water है 2.7, in this also 70% water is in the form of glacier. Glacier we know the rivers of ice and that is found on mountains ना, high mountains की जो हमारे glaciers होते हैं, जो ice sheets होते हैं हमारी, उसमें है 70%. now बचा कितना, only 1%. 1% water is available for drinking. So that is why we can say that water is an important resource and we have to save this, we have to use this carefully. ऐसे नहीं कि वाटर तो मीन्स अनलिमिटेड है और हम इसको यूज करते जाएंगे. ओके, वाटर इज कांस्टेंट ऑन अर्थ. ऐसा नहीं है कि हमें दिखता है कि रेन होती है और वाटर दोबारा से बन जाता है. नो, इट इज कांस्टेंट. अब वाटर कैसे बनता है, दैट इज with the help of water cycle. See, water cycle, what is water cycle? Suppose ये हमारे ओशियंस हैं. ओके, अब ओशियंस में पानी होता है, यहाँ पे हमारा सन है. अब क्या होता है कि जब डायरेक्ट सन रेज आती हैं ओशियन के ऊपर, तो ये ओशियन जो है, ये वाटर जो है, ये गर्म हो जाता है, ठीक है. और इवेपोरेशन के थ्रू जो इवेपोरेट होता है, तो इसमें से वाटर जो इवेपोरेट होके ऊपर जाता है और ये क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं, ठीक है. क्लाउड फॉर्म हुआ. अब जब क्लाउड में बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है, मीन्स ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेन की फॉर्म में, मीन्स प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये अर्थ पे अगेन रिवर में आते हैं और ये रिवर लास्ट में ओशियंस में मिल जाती हैं. सो दिस इज
water cycle means what happened in this water cycle. See, ओशियंस में वाटर है, ओशियन से क्लाउड फॉर्म हुए, क्लाउड से फिर रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में अगेन रिवर, रिवर से फिर वाटर, मीन्स दिस इज कांस्टेंट ना. जैसे हमारी लैंड कांस्टेंट है, लिमिटेड है, इन द सेम वे दिस वाटर इज ऑल्सो कांस्टेंट. वी से दिस वाटर इज रिन्यूएबल, मीन्स ये इजिली रिन्यूड हो जाता है, बट जितना है उतना ही रिन्यूड हो जाता है. मीन्स हमने यूज किया ओशियन से, फिर वो रेन में गया, रिवर से, बट हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होगा. सो वी हैव टू यूज दिस वाटर केयरफुली. ओके, नाउ नेक्स्ट, sport rich variety of plants and animals. So if we talk about the uses of this water, कि हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स है, जितनी भी वेजिटेशन है, सभी के सभी किस पे डिपेंडेंट है. इवन वी ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर. ओके, सो ये स्पोर्ट किसको करता है, वाटर. जितनी भी हमारी लिविंग मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनकी लाइफ है, जो वाटर पे डिपेंड होते हैं. एंड इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इट इज रिन्यूड थ्रू वाटर साइकिल. रिन्यूएबल है, वी नो वेरी वेल दैट इट renew this through this water cycle, but it is constant. Okay, next, use of water. अब water का uses like land uses. Now water uses, drinking, we know very well that for drinking we use water. Washing means washing clothes, washing car, washing house, everything we use water. Agriculture, in agriculture also means if you want to grow crops then we need irrigation na? So for irrigation we need water. Industries, for running industries also we need water. Next, generating electricity means जो हम electricity use करते हैं that is generated by water ना. So in all these purposes we use water. Now next thing, challenges to water availability. Now in the same way means in land uses also we have learned that some challenges before the land and now some challenges before the water also, and that is first is rising demands. Rising demands means when population increased, means when population increasing day by day, then what happened, their demand also will increase now. And next thing, urbanization. Urbanization means जो लोग cities में शिफ्ट हो रहे हैं और जो सिटीज को डेवलप कर रहे हैं, तो सिटीज की जैसे डेवलपमेंट होती है मीन्स जो अर्बनाइजेशन एक तरह से होता है कि बहुत सारे जो सिटीज हैं उनका बनना. ठीक है, सो अर्बनाइजेशन जैसे कि जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी वाटर की डिमांड कम होती है क्योंकि उनके आसपास रिवर्स होती हैं. ठीक है, बट जो सिटीज है वहाँ पे वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है. तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, तो जो वाटर का यूसेज है वो बहुत ज़्यादा होगा. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की increasing population and then they need food, and for food they have to grow crops, and for crops we need irrigation and irrigation demands water. So understood. So these are the challenges. Next thing, problems of water availability. Now what are the problems of water availability? कि जो water है उसकी availability के लिए means हम क्या क्या प्रॉब्लम बता सकते हैं कि वाटर क्यों अवेलेबल नहीं हो सकता आने वाले टाइम में, या शॉर्टेज क्यों हो सकती है वाटर की. हम फर्स्ट तो वी नो वेरी वेल दैट ओनली 1% वाटर इज अवेलेबल मीन्स फ्रेश वाटर इफ वी टॉक. एंड नेक्स्ट थिंग दैट दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल ऑन ऑल रीजन इक्वली. मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में जितना वाटर अवेलेबल, इवन हमारी कंट्री में भी डिफरेंट स्टेट में जैसे राजस्थान वगैरह है वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है. ठीक है, और हम मीन्स हमारी कंट्री में भी डिफरेंट रीजन में वाटर unequally distributed है, because earlier we have discussed that these resources are unequally distributed over the earth ना. and in the same way कि जो water है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्ट में मीन्स वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं पर तो बहुत ज़्यादा मीन्स सूखा लगा लो आपकी वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, और कहीं पर बहुत ज़्यादा वाटर है. सो प्रॉब्लम्स फर्स्ट, स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत स्केर्सिटी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा कमी है वाटर की. सो सी द एरियाज लाइक अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया. मीन्स these parts where water scarcity is there. Now next, variation in precipitation.
प्रेसिपिटेशन मीन्स जो बारिश होती है, मीन्स वेरिएशन है उसमें भी। ऐसा नहीं है कि सभी रीजन्स में, सभी कंट्रीज में या सभी स्टेट में एक जैसी बारिश होती है, नो। इवन हमारे यहाँ पर भी, जैसे मिजोरम वगैरह है, मेघालय है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे भी हैं, जैसे जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट लगा लो, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। सो वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, सो दिस इज द प्रॉब्लम कि जो प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उसमें भी, मीन्स वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑल्सो इज द प्रॉब्लम। नाउ मीन्स ओवर एक्सप्लोइटेशन मीन्स अननेसेसरी, जब हम वाटर का यूज करते हैं बिना सोचे समझे, वाटर टैप ऐसे ही ओपन करके रखते हैं, पानी चल रहा है, ठीक है, कार वॉश करने के लिए जब ओपन ऐसे ही पानी को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो ओवर एक्सप्लोइटेशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेमिनेटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब कंटेमिनेटेशन मीन्स क्या होता है कि जो वाटर है उसको डर्टी करना, मीन्स जो वाटर है 1% भी है, अब ये नहीं है कि 1% भी फ्रेश वाटर है कि इंडस्ट्रीज के थ्रू या वैसे हम उसको गंदा कर देते हैं, पॉल्यूटेट कर देते हैं। सो पॉल्यूटेड वाटर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दोज फेस्ड इन वाटर अवेलेबिलिटी। फर्स्ट, scarcity of water, next the variation of precipitation, and next the polluted water and over exploitation. Okay, so up to here it is clear beta. So in next video we will discuss about the water conservation, that how we can conserve the water. Now we know very well that water is constant and we have to use this carefully because it is very important resource now. So if you want to take screenshot, then take please.